So hello and good morning. Welcome to the Edu for IAS, the live Hindu analysis class. Today we'll be first starting with, as usual, with today's questions, and this is the first question. The nature of digital services means that many cutting-edge AI deployments are not designed specifically for children, even though they are assessed by them. You need to comment in 150 words for a 10-marker question. Fine. So first of all, we discussed this article on yesterday's editorial page itself, that is the children a key yet missed demographic in AI regulation, that is artificial intelligence regulation. So how you can write this right answer for this question. So again, following the same structure, that is IBC, intro, body and conclusion. In intro, you can say that India is going to host, or India is going to host, of course, the first ever global summit on artificial intelligence next month. Alongside that, India is also the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence. Fine. So these two things will also, somewhat giving opportunity to India to, move into this direction. Means whatever demographic dividend, this demographic profile, especially of the children we are talking about, missed in the under this AI regulation. This is the right opportunity, or very good opportunity for India to make regulation in this direction, where we can regulate the AI's fine governance, especially with respect to the children, fine, or the youngsters. Okay, apart from this, another thing that is important here is, so this much, since the question is of 10 markers, so 3 to 4 lines of introduction will be sufficient. Next comes your body part of the answer. So first point you can write is about the governance challenges, that what are the challenges or the regulatory challenges at the level of administration or the governance related to the this regulation of AI, artificial intelligence. Fine, we have discussed yesterday all this. Apart from that, you can also mention that India is a melting pot of course, intersectional identities across gender, caste, creed, tribal, religion, linguistic heritage. So internationally, AI is known to transpose real world biases and inequities into the digital world, fine, especially with respect to the vulnerable communities or marginalized communities. Apart from that, AI regulation must improve upon India's approach to children under India's newly minted data protection law, fine. So these are the 3-4 points you can mention under the head, that is the governance challenges. Apart from that, you can, the next subheading you can make under your body part, that is shifting the emphasis. So here UNICEF ने जैसा कहा है कि we need to focus or shift our emphasis from, of course, this or you can also learn from the international best practices that can assist Indian regulations to identify standards and principles that facilitate safer AI deployments for the children or the youngsters. Fine. Apart from that, UNICEF की जो guidance है for policy makers on AI and children identifies around 9 requirements that should be there in any policy, and this guidance aims to create an enabling environment which promotes children's well-being, inclusion, fairness, non-discrimination, safety, transparency, explainability, and accountability. All of this. Fine. Another key feature of successful regulation will be the ability to adapt to the varying developmental stages of children from different age groups. Okay, so different age group को भी लेना होगा account में. And lastly, you can say we need better institutions. Because then these institutions will help shift regulation away from the top-down safety protocols, which place undue burdens on the parents. Fine, कि parents को वो overburden ना किया जाए इसके लिए कि बच्चों के ऊपर खुद regulation रखो, खुद checks रखो. सरकार को भी कुछ चीजें, कुछ measure लेने की जरूरत है, especially to regulate the young, keep tap on the youngsters, or to keep check on the youngsters of the negative influences of AI, especially those in the age group of 13 to 24 years. Fine. Finally, you can conclude that the fast evolving nature of AI means that regulation should avoid prescriptions and instead embrace standards, strong institutions, and best practices which imbibe openness, trust, and accountability. So this is how you can conclude your answer with these lines. Fine. So that's it about the
this question. The second question was related to the World Coffee Conference that was held for the first time in Asia in Bengaluru. We discussed yesterday. And the 4-day Global Coffee Exposition is being organized by the London-based International Coffee Organization, which is under the aegis of United Nations itself. तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. yesterday we discuss कि हेडक्वार्टर जो है लंदन में है. हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक है कि this is not fourth but this is a fifth world conference which is going to be held for the first time in Asia and that too in Bengaluru. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, यू कैन सी. So therefore B is the correct answer. Fine. Let us move to the today's Hindu. So here is your 27th of September's Hindu, and let us start with the front page quickly. Okay. So here is the first page. You can see judiciary is losing talent as government sits on names. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो है कॉलेजियम सिस्टम जो है रिकमेंड करती है सरकार को जिसके नेम्स की अपॉइंट होने चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, एंड उस पर सरकार जो है वो टाइम लगा रही है, ये ऐसा कहना है. 70 HC collegium recommendations are pending for over 10 months. ये कहा है जस्टिस कॉल ने. He adds that center continues to segregate names despite the collegium forbidding the practice. Fewer judges, rising cases. Year after year, as vacancy of judges go unfilled, the pendency of cases continues to mount. High courts में 25 sanction strength क्या है? 25 टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में, उसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 1114 आई मीन 1114 जो पोस्ट है वो सैंक्शन है टोटल. वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ जजेस जो प्रेजेंट है दैट इज 774. वैकेंसी जो है वो 340 जजेस की है. सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ 34, वर्किंग 32, वैकेंसी 2. सो यू कैन सी. एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है? हाई कोर्ट में देखो 60,72,729 cases pending in high courts for more than a year. 74.4% of the cases pending are somewhat pending for more than a year. तो इसलिए 340 वैकेंसीज हैं जजेस की कहाँ पे? हाई कोर्ट के लेवल पे. तो जरूरी है कि उसको फिल किया जाए, अदरवाइज पेंडेंसी बढ़ती जाएगी. एंड केसेस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट करंटली इज 80,591. समवेयर 80,600. CWRC दैट इज कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है जो है, इसने डायरेक्ट किया है, किसको डायरेक्ट किया है? कर्नाटका को, टू रिलीज 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15. ठीक है, ये भी मुद्दा जो है वो काफी टाइम से चल रहा है न्यूज में. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हो. मैटर्स कराते हैं आपके उसमें. हाँ, ये है कि हमें कल प्रोटेस्ट देखने को मिला. इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड, स्कूल शट इन इम्फाल ओवर प्रोटेस्ट. तो दो जो मैती कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, so they are protesting, these all students are protesting against the killing of 2 Meiteis students who went missing in July. ठीक है, तो इस वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है इम्फाल में, कैपिटल ऑफ मणिपुर. ओके, तो चीताज में भी फ्लोन इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज, क्योंकि अभी तक जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है उसमें कहाँ से रिलोकेशन जो की गई है? दैट इज फ्रॉम 2 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया. ऑलमोस्ट 6 adult cheetahs dead within the first year. So 20 टोटल लाए गए थे, उसमें से 8 अभी तक मर चुके हैं. 6 adults प्लस 2 cubs. ठीक है, तो जरूरी है कि कहीं और से भी लाने की विचार की जाए अपार्ट फ्रॉम दिस 2 कंट्रीज, सो दैट की जो इनहेबिटेशन है वो फेवरेबल कंडीशन जो है इंडिया जैसी हो, जहाँ पे दैट की जो ये डेथ देखने को मिल रहा है वो कम से कम हो. So in one of the biggest his thrives still jewelry worth around 25 crore. कल दिल्ली के एक ज्वेलरी इस शोरूम से 25 करोड़ की लूट हो गई है. देख सकते हो आप, चोरी हुई है. वर्थ ज्वेलरी वर्थ 25 crores. तो लोकल दिल्ली न्यूज, हायरिंग ड्राइव इन JNU biggest in its history. 331 faculty positions. Okay,
तो बस ये न्यूज़ है लोकल फ्रॉम दिल्ली. सो दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम दिल्ली प्लीज हैव अ लुक एट इट, अदरवाइज यू कैन. ओके, पंजाब गवर्नमेंट कमिट्स टू 50% रिडक्शन इन स्टबल बर्निंग केसेस. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. विंटर्स अप्रोचिंग, सो विंटर के में हमें ज़्यादातर पराली एंड ऑल केसेस देखने को मिलते हैं, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बेसिकली. तो कमिट किया है पंजाब ने, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. देखते हैं क्या होता है. पॉलिटिक्स है यहाँ पे तो छोड़ सकते हैं. पंजाब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फियर्स कनाडा फ्रीज फॉल आउट. हाँ, सो कनाडा के साथ जो हमारे रिलेशंस पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से जो देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वजह से पंजाब की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है इससे. फाइनली वी हैव हियर अनदर स्पोर्ट्स दिस स्टेट्स पेज. एंड यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी. असेसमेंट ऑफ स्पेस सिचुएशन डन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ आदित्य एल1. बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम करने से पहले असेसमेंट करनी चाहिए, और यहाँ पे भी इसरो ने ऐसा किया था सो दैट कि जो आदित्य एल1 की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके. बाल्सम्स इन फुल ब्लूम एड टू विजुअल ट्रीट इन मनार, गल्फ ऑफ मनार. सो बाल्सम, ये बाल्सम्स होती क्या हैं? दीज आर बेसिकली they are called Kasithumba and Onapou. Locally, its smell pink flowers are major attraction along the Devikulam stretch of this Kochi Dhanso-Kodi National Highway. तो ये है क्या? प्रेजेंटिंग अ विजुअल फिश टू टूरिस्ट. एक प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, फ्लावर्स बेसिकली. These are also known as touch me not because of the bursting of mature seeds and seed distribution. Me not going साउथ में जो बाल्सम या डिफरेंट नेम्स है, काशी थुम्बा है ना पो, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से. हाँ, फाइनली हम एडिटोरियल पेज पे, एंड एडिटोरियल पेज से देखोगे तो आज फर्स्ट जो आर्टिकल, लीड आर्टिकल है वो पाकिस्तान रिलेटेड है, पाकिस्तान की डायनेमिक्स एंड ऑल इंटरनल चैलेंजेस. सो इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिक्स है बहुत कुछ में. नथिंग इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज इस्लाम इज. हाँ, ये आर्टिकल जो है जो इम्पोर्टेंट है, विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीजेज. तो हमें क्लाइमेट चेंज के साथ ही हमें काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज देखने को मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल डेंगू के अगर आप देखोगे केसेस, या कोई भी इन्फेक्शन डिजीज जो आजकल वायरल है, वेक्टर रिलेटेड है, तो डेंगू के केसेस अगर आप देखोगे तो अब आज के एक साल में कम से कम 3 से 4 पीक सीजन देखने को मिल रहे हैं हमें डेंगू के, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था. तो समवेयर इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने जीन्स को चेंज, म्यूटेशन होती है उसकी वजह से तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइमरली ये हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेजर रीजंस इज बिहाइंड इंक्रीजिंग और चेंजिंग ट्रेंड ऑफ डायनेमिक्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, सो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, करेंगे. विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियोस. आईपीसीसी ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है? इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज दिस मार्च, द आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज delivers a stark warning. Climate change heightens the global risk of infectious diseases, and the close relationship between climate and disease is being demonstrated every year. For instance, the periodicity of mosquito-borne disease outbreaks no longer follow expected patterns, like dengue manifest in 2 to 3 peaks throughout the year. ठीक है, सो ये सब देख सकते हो. अब इशू क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल्स. तो ये कुछ रीजंस हैं. These also alter the distribution of the vectors and animal reservoirs that host the parasites, and heat has been proven to interfere with the genomic structure of the pathogens, changing their infectivity and virulence. ठीक है, तो इवन जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं, क्लाइमेट चेंज का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी, एक्सेस ऑफ हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है कि हीट जो है वो जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस हैं, वेक्टर्स हैं, चेंजेस लाता है. क्लाइमेट चेंज एंड मोर इन्फेक्शंस, हैबिटेट लॉस
फोर्सेस डिजीज कैरिंग एनिमल्स टू एनक्रोच अपॉन ह्यूमन टेरिटरी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हैबिटेट अगर लॉस हो रही है मींस एनिमल्स वहां से भागेंगे, कहीं तो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो दे विल ऑफ कोर्स कैरिंग दिस डिजीज एंड ट्रांसफरिंग द सेम फ्रॉम animals to human, increasing the risk of human-animal interaction and the transfer of pathogens from wildlife to humans. Viruses which do not harm animals can be fatal for humans. For example, नीपा वायरस अभी जो देख रहे हैं हम बैट से, स्पेशली केरला में वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एंड रिपीटेडली कुछ सालों से केरला में ये बार बार देखने को मिल रहा है नीपा वायरस के आउटब्रेक, which has been causing outbreaks in Kerala for many years now, is a good example in this case. एंड निपा वायरस भी जो है वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। An analysis of 2020 published in Nature Climate Change warns that humans now face a broader spectrum of infectious agents than ever before. So diseases often find new transmission routes, including environmental sources, medical tourism, and contaminated food and water from once reliable sources. So ये सारे सोर्स जो किसी टाइम पे रिलायबल होते थे, आज ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बन गई है इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, सो दिस डायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो लोकली नहीं मिलती हैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में और इकोसिस्टम में, से आउटसाइड से एंट्री होती है। ठीक है, लेट अस से कि कोई अफ्रीकन स्पीसीज है वो आके काफ़ी तबाही मचा रही है उस इलाके में, तो इन्वेजिव इन्वेड कर रही है बेसिकली। सो दिस ऑल एक्सटेंड्स द रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। Both these trigger upheavals in ecosystem that are complex and confound ecologists and epidemiologists too. तो इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सपोज एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम लोकेलिटी में वो स्पीसीज नहीं बिलोंग करती उस लोकेलिटी से, इकोसिस्टम से, बट लेटर ऑन हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि समवॉट इन्वेजन की वजह से भी डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज होते हैं इकोसिस्टम के लेवल पे। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है इज अनलेशिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ वल्नरेबिलिटी क्राइसिस। India in particular has felt the ominous impact with early summers and erratic monsoons causing water scarcity across the Gangetic Plains and Kerala. Okay? तो ये सारे मुद्दे हैं। इंडिया में के लेवल पे अगर देखोगे तो केरला में निपा वायरस के आउटब्रेक देख सकते हो। गैंजेटिक प्लेन्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल फीवर्स एंड ऑल हमें देखने को मिल जाता है। These climate shifts are manifesting in severe health crises, including dengue epidemic in Dhaka, that is Bangladesh, and Kolkata, and the Nipah outbreak in Kerala. So surveillance and reporting की वे फॉरवर्ड है कि सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तभी हम पार पा सकेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे इन्फेक्शियस डिजीज की जो स्प्रेड है उसको। तो चेंज डिजीज सिनेरियो रिक्वायर अ रिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी टू डिटेक्ट एंड डील विद देम। ओवर द पास्ट 2 decades, India has improved its reporting of outbreaks through IDSP. अब IDSP क्या है? इसे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम which was launched or rolled out in the year 2007 in few states. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर इसको इम्प्रूव करते हुए दूसरी जो चीज़ लॉन्च की इंफॉर्मेशन बेस्ड, दैट इज वेब एनेबल्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल्ड IHIP, that is Integrated Health and Information Platform. IHIP was launched in 7 states in 2018 and it added 20 additional disease conditions over IDSP's 13 and could present disaggregated data. So इसमें देख सकते हो कि उससे एक ज़्यादा बड़ी जो है डिजिटल हमने डेटा तैयार करने की कोशिश की है, वेब एनेबल्ड है एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रियल टाइम हमें जो डायग्नोसिस या जो भी हेल्थ रिलेटेड रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो है हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू IHIP के थ्रू हमें मिल सकती है। Tragically, the program which should have enabled real-time tracking of emerging disease outbreaks has not delivered on expectations. तो दिक्कत कहाँ है? इम्प्लीमेंटेबिलिटी के फ्रंट पे, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से ये प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म। The current design of surveillance is not adequate for the emerging disease scenario. Mitigating the spread of climate change induced disease requires safeguarding ecosystem. So क्या जरूरत है हमें? These are the solutions. We need to safeguard the ecosystem, curbing greenhouse gas emissions and implementing active pathogen surveillance. So ये 3 चीजें हमें करने की जरूरत है as measures. Unified approach की जरूरत है
termed One Health, which integrate monitoring human, animal, plant and environmental health, recognizes this interconnectedness. तो हमें वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी टाइम बोला है वन हेल्थ, तो इसमें क्या है कि इसे इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ ऑफ एवरीबडी, बी इट्स ह्यूमंस, बी इट्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन द एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजी, तो सबकी इंटीग्रेशन को हम वन हेल्थ बात करते हैं कि सबकी जो हेल्थ है उसको ठीक रखने की जरूरत है, और तभी हो पाएगी जब हम सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग पे ध्यान दें, रिपोर्टिंग पे ध्यान दें, राइट, so that we can prevent outbreaks, especially those that originate from animals. जूनोटिक इसीलिए हम बोल देते हैं जूनोटिक डिजीज, जैसे निपा वायरस है वो भी एक जूनोटिक है। जूनोटिक का क्या मतलब होता है? दो विच स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। It encompasses zoonotic disease, neglected tropical diseases, NTDs, vector-borne disease, antimicrobial resistance, and environmental contamination as well. So all of these are the fallouts of these outbreaks. India must launch One Health and Infectious Disease Control Program by building greater synergies between the center and the states and their very specialized agencies. So ये भी एक point of solution हो सकता है, way forward हो सकता है। Animal husbandry, forest and wildlife municipal corporation and public health departments need to converge and set up robust surveillance systems. More importantly, they will need to build trust and confidence. बिल्कुल ठीक बात है। So all of these could be provided as a way forward solution कि कैसे दोनों सरकारें मिलकर, राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार काम कर सकती हैं इस डायरेक्शन में। और साथ ही साथ so far the office of the principal scientific advisor to the prime minister has been taking this lead, but with a new World Bank and other larger fundings in place, this will need greater coordination and management at the state level as well. So अभी तक ये जो इनिशिएटिव है, जो भी मॉनिटरिंग है, सारा कुछ वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स, तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ के स्टेट्स के लेवल तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। डिजीज एक्स एंड बियॉन्ड, ग्लोबली देयर इज एन ऑब्सेशन विद द एनिग्मेटिक डिजीज एक्स। कल ही WHO की ने समवॉट कल परसों ही कहा है कि इससे आने वाले काफ़ी इससे हम सिवियर केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, इवन कि करोड्स में डेथ देखने को मिल सकती हैं। डिजीज एक्स कोई अनदर काइंड ऑफ दिस evolving virus kind of है कुछ। It is the familiar annual cycles of non-agents such as influenza, measles, Japanese encephalitis, dengue and diarrhea among others that will continue to test the public health system. So सबकी aggregation है this. Climate change is not limited to infectious disease. It also exacerbates injuries and deaths from extreme weather events, respiratory and cardiovascular diseases. बिल्कुल ठीक बात है। And mental health issues. The re-emergence of Nipah in Kerala is wake-up call that mere biomedical responses to disease is inadequate. तो ये हमारे लिए एक learning lesson outcome होनी चाहिए, is re-emergence of Nipah virus in Kerala. In the face of changing climate and the growing threats of infectious disease, protecting ecosystems, fostering collaboration and embracing the One Health paradigm are our best defense. Another points of solution. The road ahead demands concerted efforts not just to adapt but also to proactively safeguard our planet and its inhabitants. So road ahead क्या है? We need concerted efforts at the level of governments and also coordination and collaboration, and not just to adapt but also to proactively safeguard our planet and its inhabitants, citizens, ठीक है, including animals as well. ये इसीलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सो वेरी गुड आर्टिकल टू रीड एंड रिवाइज दिस। द नीड फॉर क्विट डिप्लोमेसी टू क्लियर द एयर। ओके, तो क्विट डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में विवेक काटजू जो है जिन्हें लिखा है, मेंबर ऑफ कोर्स रिटायर्ड मेंबर ऑफ IFS। तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट इंडिया एंड कनाडा, जो अभी चल रहा है मुद्दा कुछ दिनों से, ठीक है। आप सबको बैकग्राउंड पता ही होगा कि क्या हुआ है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा 18 सितंबर को। उसके बाद कनाडा ने जो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट थे उनको वहाँ से वापस भारत आने को कह दिया। उसके जवाब में भारत ने भी कार्रवाई की और उनके भी डिप्लोमेट को यहाँ से वापस जाने को कह दिया गया, ठीक है। सो ये सब कुछ मुद्दे चल रहे हैं। हुआ क्या था, क्या कहा ऐसा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने? तो एक खालिस्तानी जो है,
जो लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं स्पेशली फ्रॉम द पंजाब एंड दोज हु आर रिजाइडिंग इन कनाडा, सो दे आर डिमांडिंग सेपरेट लैंड दिस state you can say, or separate courts this खालिस्तान. एंड इसके जो वन ऑफ द जिनकी अभी शूट कर दिया गया था इन कनाडा ओनली, नॉट इन इंडिया, रिमेंबर द मैन इज नोन एज निजर. सो निजर केस जो है, इस केस में क्या कहा था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, एलिगेशंस जो है इस शूटिंग की वो लगाई थी इंडिया पे और इंडियन एजेंसीज पे. ठीक है, तो Canadian Prime Minister Justin Trudeau said Canada has shared the credible allegations that I talked about with India. We are there to work constructively with India and we hope that they engage with us, so that we can get to the bottom of this very serious matter. So see what allegations भी लगा दिए, साथ में ये भी कह दिया कि हम constructively engage करना चाहते हैं, इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं. ठीक है, but विवेक आर्जू जी कहते हैं कि द ऑपरेटिव वर्ड्स हियर आर कंस्ट्रक्टिवली एंड एंगेज. कनाडा ने ऐसा कभी किया इन इंडिया के साथ? अगर ऐसा किया होता तो इंडिया को रिजर्वेशन ही नहीं होनी थी, खालिस्तान वाले मुद्दे पे कभी काम ही नहीं किया कनाडा ने. फॉर इंडिया द प्रॉब्लम इज दैट कनाडा हैज नेवर शोन अ विलिंगनेस फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑन इट्स कंसर्न्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू खालिस्तान. वहाँ पे प्रोटेस्ट होती रहती है इंडिया के खिलाफ, यहाँ खालिस्तान मुद्दे उठते रहते हैं, वहाँ से इंडिया में कुछ ये लोग करते रहते हैं गड़बड़. सो बट वहाँ पे जब भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रजिस्टर किया, लॉन्च किया, कंप्लेंट अगेंस्ट दिस खालिस्तान इज विद कैनेडियन गवर्नमेंट, कुछ खास प्रूव्ड कुछ निकल के नहीं आया वहाँ पे कैनेडियन साइड से, इसलिए ये इशू जो है इतना फ्लेयर्ड अप हो चुका है. डिफरिंग परसेप्शंस नाउ. अगेन सितंबर 21 को यूएन हेडक्वार्टर, जो भी यूएन जी की चल रही थी एनुअल सेशन, सो उसमें Mr. Trudeau emphasized that Canada is a country based on the rule of law and on the need for global community to uphold a rule-based world order. तो इन्होंने कहा कि जो कनाडा है वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, फॉलो करता है, एम्फेसाइज करता है, एंड हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम हो, एंड ग्लोबल कम्युनिटी से यही नीड है ग्लोबल कम्युनिटी की कि अपहोल्ड करे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को. सी preachings. Canada has obviously made the murder of Hardeep Singh Nijjar a test case for upholding such an order. Implicit in its approach is the proposition that whatever may be the grievance of a country against Canada, the causing of harm to any its national is unacceptable. ठीक है, कि चाहे इंडिया जितनी मर्जी ग्रीवेंस को रजिस्टर कराए, कुछ भी कहे इनके खिलाफ, बट इनके लिए कौन प्राइम है? इनके सिटीजन्स, इवन द खालिस्तानीज, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी जबरदस्त है वहाँ पे, अलायंस में है ट्रूडो की जो सरकार चल रही है. ठीक है, तो ये भी एक इनकी मजबूरी है. Canada's allies, the US, UK and Australia are clearly endorsing this proposition by asking India to cooperate with Canada in the investigation. ठीक है, तो US, UK and Australia क्या है कि कनाडा के इस प्रोपोजिशन को रूल ऑफ लॉ की एंड साथ में प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया से इन्होंने कहा है कि इंडिया को कोऑपरेट करनी चाहिए विद कनाडा इन द इन्वेस्टिगेशन. The Indian government has called Mr. Trudeau's accusation absurd and motivated, but has offered to look into the Canadian concerns if it is given specific evidence. So, a balancing act from the Indian side. For India, national laws cannot become a shield for calling for succession and staging protests which glorify murder. If there is an absence of such laws, then it is necessary for a country to enact them. What Canada is currently doing is condemning the Khalistani propagandists involved in hate speech, but not taking legal action against them. ठीक है, सिर्फ कंडेम से काम नहीं चलेगा, कुछ लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा, जो कि कनाडा नहीं कर रहा है अभी. ठीक है, so the principle of constructive engagement that Canada wants demands a quick engagement on the entire gamut of legal process and practices of both countries, so that all grievances can be satisfactorily addressed. ठीक है, तो जरूरी है कि सिर्फ बात ही ना करें, काम भी लीगल एक्शन भी लिया जाए उस पे, एंड स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट टू कंट्रीज. दिस इज स्पेशली बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ इंडियंस बिलीव्स दैट कैनेडियन अप्रोच टू गवर्नेंस सिस्टम ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया इज कलर्ड इफ नॉट रेसिस्ट. बात है, फॉर देम द इंट्रूसिव क्वेश्चन रेज्ड बाय कनाडा ऑफ इंडियन वीजा सीकर्स हु बिलोंग टू द सिक्योरिटी सर्विसेज आर unacceptable. For example,
They ask if US and British security or defense services personnel who have served in the world's troubled spots are accused of torture or ask similar questions. तो ये जब वीज़ा देते हैं तब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए. ठीक है. So a full bilateral engagement is needed on this issue too. The Khalistani issue. Indian frustrations with Canada on the Khalistani issue go back more than 4 decades. The Canadian Security Intelligence Services was established in 1984. 84 में आप समझ सकते हो इंडिया में क्या हुआ था. As many CSIS officers were taken from the police, they were aware of Khalistani activities, which, as Stewart Bell notes in his work, Cold Terror began in 1969 when the Khalistani Commando movement led by Jagjit Singh Chauhan was going on. So क्या कहा था इन्होंने? Declared unilateral independence for Punjab. ठीक है. सो खालिस्तानियों का है ही यही कि यूनिलेटरल एक इंडिपेंडेंस अपने लिए एक अलग से राज बनाई जाए. ठीक है. अब डिफरेंट फ्रॉम पंजाब एंड सेट अप कॉन्सुलेट्स इन वैंकूवर, विनीपेग एंड टोरंटो. डिक्लेयर भी कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है पंजाब से, अपने लिए कॉन्सुलेट्स भी बनाने. The Canadian authorities did not take this seriously even when it became apparent in the 1980s that Khalistani supporters were willing to use terror. तो स्टार्टिंग से देख सकते हो कि कम से कम 40 साल 4 डेकेड्स पुराना ये मुद्दा है, फिर भी उस टाइम से कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा चीज को सीरियसली नहीं लिया और उसी का फॉलो आउट आज जो है आज देखने को मिल रहा है. Tragically, Air India's Kanishka bombing in June 1985 did not lead to determination in Canada that terrorism was a universal threat. ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी कनाडा के लिए, वहाँ पे उसमें भी हमें बॉम्बिंग देखने को मिली, बट फिर भी इससे भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा. The threats of Khalistani terror go back to India's western neighbor. India has given evidence on this score, but if Canada and other countries wish to have a quick dialogue on any of these aspects, India should be willing to have one. बात है अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो इंडिया भी उसके लिए तैयारी है. This background is necessary to recall because it has contributed to India's response to Canada's recent charges. Besides, it would have been wiser for Mr. Trudeau to have sought constructive engagement in the Niger case in his remarks to the Canadian Parliament. Instead, he used harsh language. Mr. Trudeau should have also refrained from expelling a senior Indian diplomat that would have elicited a more measured Indian response. And measured response जो है, this is popular, but is it wise? Measured language is an attribute of strength. So, stronger सरकारें होंगी तो of course जो टिट फॉर टैट है उन्होंने सीनियर जो हमारे डिप्लोमेट हैं इंडियन डिप्लोमेट, ठीक है, एक्सपेल किया तो हमने भी कर दिया, सीधी सी बात है. Canadian officials have publicly refused to divulge the exact nature of the intelligence they possess. They have leaked to the media, though, that they have human and signals intelligence of India's involvement in Niger's murder. Naturally, all this has to be converted into evidence which will stand judicial scrutiny. सिर्फ बातें करने से नहीं, सिर्फ मीडिया में लीक्स करने से नहीं, कुछ क्रूड एविडेंस तो दो इंडियन एजेंसी को, सो दैट कि पता लगे कि हाँ उसमें इंडियन एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी की भी इंडिया साइड से इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं. ओके. So mutual recriminations are never helpful, especially in resolving issues in important bilateral relationships. Quick and mature diplomacy is required to clear the air on the Niger's case and on old but continuing issues of Khalistanis. Okay, so quick and mature diplomacy की जरूरत है, ना कि शोर मचाने की मीडिया में. ठीक है. Okay, next is about the Ukraine counter offensive. ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव. सो डिफेंसिव होता है जब कोई अटैक कर रहा है आप पे तो आप बदले में जो करते हो वी कॉल डिफेंसिव, अपने आप को प्रोटेस्ट डिफेंसिव खेलते हो आप. ऑफेंसिव होता है कि फर्स्ट स्ट्राइक आप खुद ही कर रहे हो. ठीक है. वार ऑफ एट्रिशन जो है यहाँ पे चल रही है. ये मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इस लोकेशन वाइज हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपको पता होना चाहिए रशिया देखो कहाँ पे, ये सारा रशिया है. यहाँ पे अटैक्स चलते रहते हैं. लुहांस्क है, लुहांस्क, देन डोनेट्स्क, ये सारी प्रोविंसेस यूक्रेन के. देन बैकमोट यहाँ पे, खार्किव यहाँ पे है. तो ये एरिया सारी, मैरीपोल ये भी न्यूज़ में रहता है. ये जो रशियन कंट्रोल बिफोर फैब, रशियन कंट्रोल सिटीज रिक्लेम्ड बाय यूक्रेन सिंस जून 2020 एंड हैवी फाइटिंग. कुछ एरियाज जो हैं ग्रीन वाले वहाँ पे अभी भी हैवी फाइटिंग चल रही है. रशिया कंट्रोल जो रशियन कंट्रोल सिटीज जो हैं वो ये वाले हैं.
एंड जो डॉटेड वाले हैं ये रशियन कंट्रोल बिफोर Feb 24 2022 है, ठीक है। जबकि फरवरी से ही ये जो दोनों के बीच में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी रशिया के कंट्रोल में ये चीज़ें थी। क्रीमिया तो यू ऑल नो कि 2014 में ही रशिया ने इसको कब्जा कर लिया था इस पे। तो क्रीमिया कहाँ पे है, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना। ओडेसा पोर्ट देखो यहाँ पे ब्लैक सी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस हमारे लिए ये जो लोकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। खेरसोन जो है ये भी न्यूज़ में रहता है, फाइन। ब्लैक सी तो है ही, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, फाइन। तो अल्टीमेटली अभी लगता नहीं कि खत्म होने वाला है। यूक्रेन हैड प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स बिफोर इट लॉन्च द काउंटर ऑफेंसिव इन जून दिस ईयर। द प्लान एज लीक्ड यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शो वाज टू कंडक्ट अ क्लासिक Blitzkrieg, a lightning operation with an armored strike force piercing through Russian line of defense, capturing territories and delivering a blow to the Russian positions in eastern and southern Ukraine. पहले से ही ऑफेंसिव जो अप्रोच है वो नो यूक्रेन की रही है एंड प्लान भी रही थी ऐसी, बट ऐसा हुआ नहीं। Ukraine's plan to take a quick victory against Russia forces was doomed to fail from the very beginning. US intelligence agencies had expressed their skepticism about the counter-offensive well before it was launched. Leaked US intelligence documents showed the bleak assessment of the counter-offensive by Washington. Okay, so of course Russia को underestimate नहीं किया जा सकता. The might to Russia can of course retaliate, and it has might to do so. बेटर कि ऐसे पंगे ना ही लें। इंडो पैसिफिक रीजन अ वेव ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, आर्मी चीफ ने ये कहा है। जनरल मनोज पांडे जी जो हैं वो हमारे प्रेजेंट जो आर्मी चीफ हैं, सो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक की जो इंपॉर्टेंस है ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द यू कैन से द वेव ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये बात कब कही है इन्होंने, तो देख सकते हो आप 13th IPACC इन न्यू दिल्ली। नाउ अब ये IPACC क्या है, सो इट्स इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार, 14th Indo-Pacific Armies Management Seminar and 9th Senior Enlisted Leaders Forum, also being held alongside the IPACC. So IPACC now, तो ये देखो इंडो पैसिफिक रीजन इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ नेशंस बट अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस लाइन को आप यूज़ कर सकते हो कहीं जहाँ भी इंडो पैसिफिक से रिलेटेड कुछ हमें लिखना हो, ठीक है। तो तो चाउ चाइना सी की भी बात की। द आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड द यूएस मेड विल्ड रिमार्क्स अबाउट चाइना's लैंड रिक्लेमेशन इन द साउथ चाइना सी and said that these challenges are manifesting as threats, stressing cooperation is a critical component of collective response. फाइन, सो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके ठीक है, सो व्हाट इज इट, सो ऑफ कोर्स आर्मी चीफ हैं तो समझ सकते हो कि आर्मी रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस होगी। सो ऑफ कोर्स दिस वाज 13th Indo-Pacific Army Chiefs Conference that India is hosting for the first time along with the US, and it involves 13 countries and 20 chiefs present. तो यूएस के साथ मिलकर के फर्स्ट टाइम इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस जो इंडिया हेल्ड कर रहा है, ठीक है, होस्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें अरे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं एंड साथ में हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी थे यहाँ। साइड में आप देख सकते हो डेप्यूटी चीफ ऑफ कैनेडियन आर्मी हेल्स मिलिट्री टाइज बिटवीन इंडिया एंड दिस कनाडा। चलो कुछ अच्छी चीज भी देखने को मिल रही है। तो व्हाट एल्स इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये हमारे जयशंकर साहब ने कहा है डेज व्हेन अ फ्यू नेशन सेट एजेंडा आर ओवर, ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में। ये अभी कल ही इन्होंने एड्रेस किया था जो यूएनजी का सेशन चल रहा है, 78th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है, इन न्यूयॉर्क। तो इसलिए
इन्होंने क्या कहा है कि अ फेयर इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल श्योरली इमर्ज वंस वी ऑल पुट आवर माइंड्स टू इट, दैट मीन्स ensuring that rule makers do not subjugate the rule takers. He speaks of the G20 presidency as catering for divergences and calls for reform of UN and other multilateral institutions. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे I2U2 मेंशन है, इंडिया, इसराइल एंड यूएस एंड यूएई। इसके बारे में हम लास्ट 2-3 डेज में भी बात कर चुके हैं काफ़ी। अमृतकाल को भी इन्होंने अंडरलाइन किया, एंड ऑफ कोर्स द अचीवमेंट एट द G20 प्रेसिडेंसी एंड G20 समिट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है। इंडियंस ईट मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशंस इन अ पिकल। हाँ, तो हम लोग अचार खाने के बड़े शौकीन हैं। और ऑफ कोर्स सो इंडिया स्टैंड्स एट 8.9 ग्राम अ डे फॉर मेन एंड 7.9 ग्राम अ डे फॉर वीमेन अगेंस्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशंस ऑफ अप टू 5 ग्राम डेली। ठीक है, तो देख सकते हो कि हम 2 से 3 ग्राम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पेशली नमकीन, पापड़, पैकेज चिप्स, इन सब में सोया मस्टर्ड सॉस एटलीस्ट वंस इन अ वीक, एटलीस्ट वंस मंथ एंड अदर, देख सकते हो। तो कम करने की ज़रूरत है हमें नमक की कंजम्पशन जो है, अदरवाइज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। खाना खा करो, कम खाया करो। ओके, प्रमोट व्हीट सीड्स दैट आर हीट टॉलरेंट, सेंटर ने ऐसा कहा है स्टेट्स को। ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम जो प्रोडक्शन है वो गिरती नज़र आ रही है व्हीट की। ठीक है, तो इसलिए हीट टॉलरेंट जो सीड्स हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सेंटर सॉफ्टन्स एंजल टैक्स रूल्स। ओके, तो सेंटर ने कुछ ढिलाई बरती है, कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं, स्पेशली एट एंजल टैक्स। सो एंजल टैक्स की अगर बात करें हम, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ शेयर्स and 10% tolerance for deviations from the accepted share valuation. The new rules, however, do not apply to resident investors. So government eases rules governing investment in startups by non-resident investors at a premium over fair market. So angel tax, angel investors वो होते हैं जो startups में invest करते हैं, ठीक है, simply, जो भी उनको फिर उससे गेन होता है उस पर कुछ टैक्स लगाई जाती है, इसी को हम एंजल टैक्स बोल देते हैं। The new rules notified by the center provide more flexibility to merchant bankers for the valuation of company. New policy is expected to address practical difficulties faced by investors and firms due to lack of clarity. Until now, valuation of equity shares could only be based on net, this actual value can say. बस इतना ध्यान रखना, इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना एंजल टैक्स होता क्या है, टैक्स कितनी लगाई गई है, 10% टॉलरेंस भी इसमें देखने को मिली है, दी गई है, डिविएशन होती है उसमें। Government refunds 250 crore to settle MSME disputes as COVID relief under scheme. Okay, a good thing. That's important. So, exporters seek higher support under RoadTap scheme. RoadTap scheme क्या है? In order to boost or promote exports, so it is a remission of duties and taxes on exported products. Scheme for 9 more months till June 30. So अभी क्या हुआ है कि गुड्स एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन कर रही है फॉर द 7 मंथ इन कंटिन्यूटी। द गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है सपोर्ट टू आउटबाउंड शिपमेंट बाय स्ट्रेचिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रोड टैप टू जून 30th 2024। ठीक है, सो तब तक ये एप्लीकेबल होगा। ये कुछ एग्जाम्पशंस, कुछ ड्यूटीज जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज में उसमें छूट दी जाती है एक्सपोर्टर्स को। नाबार्ड जो है इसने सोशल बॉन्ड इशू किया है विद 1000 करोड़। सिप्ला ने एक न्यूज है कि डिलीवरी स्टार्ट कर दी है ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन बाय ड्रोन इन हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना किस स्टेट में और किस कंपनी ने की है। वर्ल्ड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेपाल से नो टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया।
The joint statement reflects a careful balancing act from Nepal, which has made it clear it will work with China on development projects, but take a cautious line on matters related to security cooperation. They agreed to strengthen connectivity in such areas as ports, roads, railways. तो अच्छी बात है कि ठीक है, इस जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है इसको किस नाम से जाना जाता है? इट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क एज द प्लान इज कॉल्ड। ठीक है, सो काफ़ी सारी हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, काफ़ी सारे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से मना कर दिया है नेपाल ने अग्री करने से और ज्वाइन करने से। गुड थिंग, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत बढ़िया बात है। So boost in solar energy and electric vehicle sales gives hope for climate goals. International Energy Agency ने कहा ऐसा। That's a good. Finally, we are on the sports page. So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. But अगर पहले कि हम क्लास को ओवर करें, let us have a look at the questions from today's based on today's analysis itself. First is protecting ecosystems, fostering collaboration, and embracing the One Health paradigm would be the best defenses against climate change. You need to discuss for a 10-marker question in 150 words. And second is related to the angel tax. The angel tax was initially introduced in 2012 to discourage the generation and utilization of unaccounted money through investment in closely held companies. Second statement, it is a tax that must be paid on the funds raised by unlisted companies through the issuance of shares in off-market transactions. You need to choose the correct option out of 4. Fine. So that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Do not forget to solve these questions. Thank you.